Hello everyone. So welcome to Plutus IS. So earlier we have studied about monetary policy, who releases the monetary policy, how many members it has, and what are the monetary policy tools, which is most important from where the UPSC asks questions almost every alternate years. So we have studied about the CRR in the previous lecture. What is the monetary policy tools, and under the monetary policy tools there are two kind of tools. One is qualitative tool and the other one is quantitative tool. So quantitative tool is the one from where UPSC asks questions every time. So in this lecture we are going to cover another quantitative tool, that is SLR, which means statutory liquidity ratio. Is it clear? So we will understand what is SLR and what are the regulations for SLR. So what is the meaning of SLR? SLR, what is the full form of SLR? So it is statutory liquidity रेशियो. ठीक है. तो जैसा कि मैंने पहले के लेक्चर में बताया आपको कि एवरी बैंक कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ बैंक रन. बैंक रन इज अ प्रॉब्लम वेयर द डिमांड फॉर द कैश comes from the customer is so much that the bank is not able to fulfill it because it has given that amount as a loan to another person. Now that particular person will return the loan only on the said period of time when it is written in the document that you have to pay the EMIs in 12 months, then the money will come back in 12 months only. But in between, if the demand arises for the cash, then the bank has to manage it. So to fight that crisis, RBI has mandated, as we have studied in earlier lecture, that banks have to maintain the CRR. They have to deposit the CRR money with the RBI. This money will be deposited with the RBI, and this CRR ratio will be decided by the monetary policy committee every time in the monetary policy when the monetary policy committee releases the monetary policy. And when the monetary policy is getting released, so at the end of every 2 months, हर 2 महीने के बाद monetary policy आती है. But CRR को generally touch नहीं किया जाता है. जो हमारा monetary policy का जो main tool होता है repo rate, जो हम आगे समझेंगे, उस repo rate से ही market में liquidity को manage कर लिया जाता है. So we touch CRR only in the case when there is a kind of emergency. जैसा कि हमने कोविड टाइम में देखा था कि कोविड टाइम में when everyone was in the lockdown, और उस समय there was a kind of deflation in the market, और वहाँ पर मनी सप्लाई को बढ़ाना था, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना था, हमारी इकोनॉमिक व्हीकल को फिर से रन करना था, तो वहाँ पे आरबीआई ने सीआरआर को टच किया था. बट वैसे सीआरआर को टच नहीं करती और ना ही एसएलआर को टच करती है. So what is SLR? So SLR is statutory liquidity ratio. यहाँ पर RBI बैंक से क्या कहता है? So we will understand it with the help of a beautiful example. तो example के तरीके से हम इसको समझेंगे कि for example, if an SBI bank is getting deposits worth rupees 1 lakh, इज इट क्लियर? नाउ आरबीआई ने क्या बोला कि इस 1 लाख रुपए में से सबसे पहले आप 4% यानी 4000 एज सीआरआर डिपॉजिट कर देंगे हमारे पास यानी आरबीआई के पास. सो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? 96,000. दिस 96,000 the banks can lend to other persons. Is it clear? But no, this is not the amount. There is a catch. Now what is the catch? Catch is apart from the CRR के अलावा banks को SLR भी maintain करके रखना पड़ता है. Now what is this SLR? So bank simply says कि whatever is your deposit, in that first you have to deposit the CRR
which is 4%. Then you have to maintain the SLR. Now अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि CRR को डिपॉजिट करना पड़ता है और SLR को मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, SLR को मेंटेन करना पड़ता है, which means that SLR is not deposited in the account of the RBI. CRR जो है वो RBI के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, बट SLR is not deposited in the account of the RBI. ये बैंक अपने पास खुद से मेंटेन करके रखता है. तो कितना ये परसेंट है अप्रोक्सीमेटली? तो ये 18% है. 18%. तो फिर से एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर इसको हम समझे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो इफ अ बैंक इज गेटिंग 1 लाख रुपीज, सबसे पहले इसमें से डिडक्शन होगा 4,000 रुपीज का, विच इज 4%, विच इज द CRR. और ये पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसा जाएगा RBI के पास में. ठीक है, ठीक है. तो इन केस ऑफ बैंक रन दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड. Next, 18% of 1 lakh, not the remaining amount, 18% of the total deposit, which is 18,000 rupees. This have to be maintained as SLR by the bank itself. तो ये पैसे को आपको रखना पड़ेगा, बैंक को रखना पड़ेगा अपने पास एज अ रिजर्व. ठीक है. Now, what is the total amount? 22,000 इसमें से माइनस हो गया. So when we minus 22,000, so remaining 78,000. This is the money which goes into the market. This is the money which goes into the market in the form of loans. इज इट क्लियर? तो टोटल आप देख रहे हो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा बैंक सेफ्टी पर्पस से रख रहा है. 4,000 सबसे पहले तो दे रहा है. 4% इज गिविंग टू द RBI so that in the case of bank run it can be utilized. Then 18% it has to be maintained by the bank itself, and it is mandatory. Bank cannot deny this. They have to maintain it because regular audits have been टेकन बाय द RBI. RBI जो है लगातार ऑडिट करती रहती है और देखती रहती है कि बैंकों ने मेंटेन किया है कि नहीं मेंटेन किया है. नाउ ये जो पैसा है दिस 18,000 रुपीज, ये किस फॉर्म में रख सकती है बैंक अपने पास? किस फॉर्म में? सो ओनली 3 फॉर्म्स. ओनली इन 3 फॉर्म्स. या तो इसको एज अ कैश रखिए, या तो इतने ही अमाउंट का आप गोल्ड परचेस कर लीजिए, और या तो आप यहां पे परचेस कर लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज कॉल्ड एज GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. मतलब दिस मनी हैज टू बी इन द लिक्विड फॉर्म. This money has to be in the liquid form. Why in the liquid form? The most liquid money is cash money. आपको जब जरूरत पड़ेगी, आपके पास पड़ा है, आपके जेब में है, आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. गोल्ड कैन बी इजीली मोनेटाइज्ड इन द मार्केट. अगर आपके पास गोल्ड है, आप बाजार में जाते हैं, तो आपका ये सोना हाथों हाथ बिक सकता है, या फिर आप उस सोने के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ लिक्विड मनी. Now when it comes to GSEC, government security. Now what is GSEC? This is a new term, government securities. तो ये government securities basically होती क्या है वो समझते हैं. तो government securities, GSEC is basically a kind of bond, a bond that is released by central government. ये एक तरीके का बॉन्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया जा रहा है. नाउ यू नो व्हाट इज अ बॉन्ड पेपर. बॉन्ड पेपर बेसिकली होता क्या है? सो बॉन्ड पेपर इज अ काइंड ऑफ अ पेपर जहां पर अमाउंट लिखा रहता है. सो फॉर एग्जांपल द अमाउंट इज 10,000 रुपीज. फिर यहाँ पे लिखा रहता है इसका इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट रेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम मान लो अगर 10% है. ठीक है. एंड लिखा रहता है यहाँ पर टेन्योर. सो टेन्योर इज फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ 1 ईयर.
Is it clear? So, if a person A purchases this amount, this bond paper, it will submit 1 lakh. Sorry, what 10,000? It is not 10,000. We are taking an example. So it will deposit 10,000 in the account of the government, and government will give this paper to this particular person. Now suppose this person has purchased it on, what is the date of today? Today's date is 18th March 2026. Now what is the tenure written here? Tenure यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 1 साल. यानी on 18 March 2027 this person A can come back with this paper. ठीक है, ये पेपर लेकर जाएगा, गवर्नमेंट से कहेगा आप अपना बॉन्ड रख लीजिए और मुझे मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दीजिए. रिटर्न माय मनी विथ इंटरेस्ट, बिकॉज ऑल वी वांट इज इंटरेस्ट. सो नाउ द पर्सन विल गेट हाउ मच मनी? तो इसको मिलेगा 10,000 प्लस 10% इंटरेस्ट विच इज 1,000 एंड विच इज इक्वल टू 11,000. इज इट क्लियर? तो 11 नॉर्मल बॉन्ड्स की तरह. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बॉन्ड एंड दैट इज रिलीज्ड बाय कंपनीज एंड दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी? सो इट इज कॉल्ड एज अ सॉवरेन बॉन्ड बिकॉज its security is taken by the government itself. Its security is taken by the government itself, which means the government will not deny money in any case. अगर आप प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे एक चांसेस है कि आपके ये जो पैसे हैं वो डूब सकते हैं, क्योंकि कंपनी डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, इन केस योर मनी इज गॉन. बट इफ इट हैज अ सॉवरेन गारंटी, तो सॉवरेन गारंटी के केस में बैंक कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी ले रखी है. अब आप खुद सोचो कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर अपने ही बात पे खड़ी नहीं उतरी तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो मार्केट में वो कभी भी लोन किसी टर्म्स में नहीं ले पाएगा. सो नाउ इसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट कब करती है? तो गवर्नमेंट को जब भी किसी स्कीम्स को चलाना हो, रन करना हो, इमीडिएट मनी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, बजट, पहले तो गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट के बाद अगर एक्सेस नीड पड़ी, देन गवर्नमेंट रिलीजेस दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, then government releases this government security to borrow money from the normal public. पहले क्या होता था? पहले होता था कि these government securities was only purchased by the banks, NBFCs और large financial institutions. पहले ये होता था, but now it has been made available to the normal public also. But normal public has to purchase it via whom? So it will have to purchase it via RBI. So RBI is the governing authority जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग एंड परचेज को कंट्रोल करती है. इज इट क्लियर? क्लियर है? तो जैसा कि मैंने बताया कि SLR में क्या करना होगा, तो SLR में 18%, SLR में 18% यानी 18,000 रुपीज या तो आप कैश या तो गोल्ड या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे. बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ देयर इज अ सिनेरियो कि अगर यहाँ पे 10% लिखा है तो 10% ही मिलेगा. और इसका एक और फायदा होता है कि इफ यू हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर इस मान लो फॉर एग्जाम्पल बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो दे कैन टेक लोन ऑन इट ऑल्सो, दे कैन सेल इट ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड काफी रहती है एंड पीपल यूजुअली ट्राई टू परचेज इट इन द केस ऑफ इफ दे वांट द काइंड ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, जहां आपको पता है कि आपको इतने पैसे बढ़ के मिलने ही मिलने हैं. अगर शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो गोल्ड भी वनरेबल होता है कि आपने आज 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, कल को अगर आप उसको बेचने जाओ तो 90,000 में ही बिकेगा. बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप कभी भी सेल करोगे, यू विल गेट द मनी what you have given. Is it clear? अगर आप थर्ड पार्टी को भी सेल करो तो वो उतने पैसे में खरीदने को तैयार हो जाता है. So you will not face loss until unless it is very urgent and और आपको पैसों की बहुत जरूरी है और मार्केट में आपको बायर्स नहीं मिल रहे हैं, देन आप उसको डिस्काउंटेड रेट पे भी सेल कर सकते हो. Is it clear? So your money will be safe. That is why the RBI has asked that you have to keep this money in 3 forms only: cash,
gold or government security. Is it clear? Now how this SLR will help in fighting inflation and deflation, वो देख लेते हैं. तो जैसा कि हमने CRR के केस में देखा था, सिमिलरली हम 3 सिचुएशन लेते हैं SLR के केस में भी. तो सिचुएशन नंबर वन, सो टोटल डिपॉजिट बैंक के पास कितना है? इट इज 1 लाख रुपीस. 1 लाख रुपीस. यहाँ पे CRR फॉर एग्जाम्पल 4%, या 4% नहीं, हम इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई करके 5% कर देते हैं. ठीक है. और SLR को हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 20%. ठीक है. सिनेरियो नंबर 1. सिनेरियो नंबर 2 जहां पे CRR इज अनचेंज्ड टू 5%, लेकिन SLR को हमने बढ़ा के 20% से 30% कर दिया. वी हैव इंक्रीज्ड इट एंड टोटल डिपॉजिट इज सेम विच इज 10,000. इज इट क्लियर? सिचुएशन नंबर 3 क्या है? तो सिचुएशन नंबर 3 है कि जहां पर CRR इज इक्वल टू 5% एंड SLR को अब हमने कम कर दिया, 20% से 10% पे कर दिया. ठीक है. एंड टोटल डिपॉजिट इज सेम विच इज 1 लाख. नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का 5% यहां पर है, तो 5% मींस 5,000 रुपीज RBI को दे देना है एज CRR को दे दिया. ठीक है. फिर इसका 20% यानी 20,000 रुपीज ये SLR के फॉर्म में मेंटेन करके रखना है. यानी टोटल माइनस हो गया कितना? 25,000. सो बैंक के पास बच गए 75,000 रुपए, और ये 75,000 रुपए फिर वो लोन के रूप में मार्केट में दे सकता है. ठीक है. दिस इज द केस नंबर 1. नाउ कमिंग टू द केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या है? टोटल डिपॉजिट इज 1 लाख. यहां पे भी CRR कितना है? 5% है, तो CRR इज अनचेंज्ड 5%. SLR यहां पर हो गया 30%, सो 30% मींस 30,000 रुपीज. तो टोटल हम माइनस करेंगे 35,000, सो बचा कितना? 65,000. 65,000 इज द मनी दैट विल गो इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू द मार्केट. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड इज सिचुएशन नंबर 3 जहां पे CRR 5% है, SLR आपका 10% है. तो यहां पर सबसे पहले 5,000 रुपए चले गए RBI के पास, देन 10% यानी 10,000 बैंक SLR की तरह अपने पास रिजर्व रखेगा. यानी यहां पर कितना पैसा बचा? 85,000 which will eventually go into the loans and eventually it will be spent in the market. Now have a close look on these 3 examples. अब इन 3 एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज एकदम साफ दिखाई दे रही है कि जब SLR 20% था तो बैंक के पास 75,000 रुपए बच रहे थे, यानी मनी सप्लाई कितनी थी? 75,000. अब सपोज करो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कम किया जाता है. तो इन्फ्लेशन में जब मनी सप्लाई को कम करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी में SLR को बढ़ा दिया, तो मार्केट में कितना पैसा गया? 65,000 गया. मनी सप्लाई हमने कम कर दी. जब डिफ्लेशन है, हमें लड़ना है मंदी से, डिफ्लेशन से लड़ना है, तो हमने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया. कैसे बढ़ाया? हमने SLR को कम कर दिया 10%, तो मार्केट में कितना गया? 85,000. इज इट क्लियर? तो अब यहां से हम सिंपली इसको समराइज अगर करें तो समराइज क्या करना है कि टू फाइट इन्फ्लेशन अगर मार्केट में है तो SLR को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे. इज इट क्लियर? और अगर मार्केट में डिफ्लेशन है से, तो डिफ्लेशन के केस में, in case of deflation what we will do? We will decrease the SLR परसेंटेज को कम कर देंगे. Is it clear? So ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, बट द
these tools are not generally used in usual circumstances. कि नॉर्मल अगर मार्केट में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तो उस केस में इस टूल का यूज नहीं किया जाता है. This tool is only utilized in the case when there is an emergency kind of situation, like we saw in the case of COVID-19. So COVID-19 केस में ही CRR को टच किया गया था. अदरवाइज जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दी रेपो रेट जो है विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स बट वेरी इजिली आपको समझाया जाएगा प्लूटस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे. और रेपो रेट इज द वन जिसमें अक्सर चेंजेस किए जाते हैं. मतलब इन एन ईयर अगर आप देखोगे तो एक दो बार इसमें चेंजेस आपको देखने को नॉर्मली मिल जाता है. इज इट क्लियर? सो फॉर दीज सिंप्लीफाइंग काइंड ऑफ वीडियोज फॉलो दिस चैनल सो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वो स्ट्रांग हो जाए, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और पूछता आया है कि मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हम आने वाली क्लासेस में हम पीवाईक्यूज भी इस पर लेकर आएंगे जिसमें इसका डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and as much you can like this session, and for more if you want these kind of sessions to come more then comment also. Thank you so much. Have a great day.